So, class 12th, good morning to all of you. So, today I will discuss regarding question number 51. It's a very important question for you. So, the question is A and B were partners with the capitals of 15 lakh, 20 lakh. They decided to share profits 2:3. Yani A and B, the old profit sharing ratio 2/5, 3/5. This is the old profit sharing ratio of A and B. Clear? So, on 1st April 2020, they admitted Mr. C as a new partner and the new profit sharing ratio 3:3:4. New profit sharing ratio 3:3:4. Yani 3/10, 3/10 and 4/10. Clear? So now you calculate sacrificing ratio. Who will sacrifice? A and B. Old partner will sacrifice. Okay? So sacrificing ratio old minus new once again, and A is new. A is sacrifice 2/5 minus 3/10. So 10 LCM, 5 to the 10, 2 to the 4, 3, 1/10. So B will sacrifice 3/5 minus 3/10. Clear? Old minus new, again 10 LCM, 5 to the 10, 2 3 is 6 and 3/10. So the sacrificing ratio is equal to 1:3. So how to calculate the sacrificing ratio? Old minus new. Now you calculate. A will sacrifice, B will sacrifice. A will sacrifice 1/10 and B will sacrifice 1/3. 3/10. Sorry. Clear? So sacrificing ratio is equal to 1:3. It means 1/4 and 3/4. Clear? So how to calculate the goodwill of the new partner? So first you write the thing regarding goodwill. So the C brings 20 lakh as his capital. So C it means C brings 20 lakhs as his capital. So what is the entry of C brings 20 lakh as his capital? And that the assets apart from cash consisted of the following. Clear? So first of all, you prepare old balance sheet. You have to write this thing: old ratio, new ratio and sacrificing ratio. Now you have to write this thing. Clear? So next thing, first of all, balance sheet has not given in the question. Old balance sheet of A and B. ठीक है? So 31st मार्च की इसमें आप ओल्ड बैलेंस शीट खींच लीजिएगा. तो ओल्ड बैलेंस शीट की जो फिगर है वो क्या है? कह रहा their assets apart from cash consisted of the following. Fixed assets 20 lakh. Assets, liabilities. ठीक है? Amount. Fixed assets 20 lakhs. Clear? Now next thing is stock 15 lakhs. Now next thing, debtors. How much debtors? Rupees 5 lakh. Now on the date of creditors 4 lakh. Creditors 4 lakh. Next thing, general reserve 3 lakh. ठीक है? कैपिटल ऑफ A and B शुरू के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है 15 lakh and 20 lakh. So the total is 35 lakh. The total is balance sheet 42 lakh rupees. ठीक है? यहाँ पे देखो 42 lakh नहीं आ रहा. 20 lakh, 35 lakh, 40 lakh. 2 लाख रुपए की कमी. जबकि लाइन नंबर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लाइन नंबर 4 में दे रहा है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग. और पुरानी बैलेंस शीट में कैश नहीं दिया है. सो जितना शॉर्टफॉल है बैलेंसिंग फिगर वो यहाँ रख देना. ठीक है? सो आपकी फिगर आ जाएगी 2 लाख रुपीज. सो टोटल हो जाएगा 42 लाख. ठीक है? ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट थी जिसमें ओल्ड बीएस जिसमें कौन कौन पार्टनर थे? ए और बी. क्योंकि बैलेंस शीट इसमें बनाया नहीं इसलिए हमने बना दिया.
ये फिगर लाइन नंबर 4 आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अपार्ट फ्रॉम कैश वाला इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, ठीक है। देयर आर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, सो जितना कमी आएगी वो हम कैश में पोस्ट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस वर मेड, देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000। इसमें कहीं भी वर्कमैन कंपनसेशन का जिक्र नहीं किया, ठीक है। सो वर्कमैन कंपनसेशन का जिक्र नहीं किया है तो इसका मतलब है कि ए और बी ने कभी वर्कमैन कंपनसेशन बनाया ही नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सो ए और बी ने बनाया ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई हमारे पास, इसका मतलब है लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। सबसे पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खींचते हैं, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बहुत इजी होता है रिवैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होगा लेकिन होता बहुत इजी, ठीक है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, ठीक। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है टू WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये हमारे बैलेंस शीट में भी पोस्ट होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, 20,000 डेटर्स ऑफ डेटर्स एंड आर बैड एंड प्रोविजन 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डॉटफुल डेट्स। हमारे डेटर्स कितने के थे? 5 लाख के, ठीक है। सो हमारे बैड डेट्स हो गए, जिसका मतलब है 20,000 के डेटर्स ऐसे थे जो आपको पैसा नहीं देंगे, तो आपके 5 लाख में से 20,000 पैसा नहीं देंगे, पैसा डूब गया इसका मतलब। और फिर कह रहा है कि प्रोविजन करिए, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ठीक है। डॉटफुल डेट्स, कितने के डेट्स और थे जो आपको पैसा नहीं देंगे, यानी 5 लाख में से 20,000 का आपने ये मान लिया पैसा नहीं देंगे, तो बचे कितने? 4,80,000। सो 4,80,000 का 5% आप लोग निकाल लीजिएगा, तो 4,80,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा? 24,000 के डेटर्स आपको और पैसा नहीं देंगे। करना क्या है, 5 लाख में से 20,000 आप डिडक्ट करिएगा, जो बचेगा यानी 4,80,000 और इसका 5%, क्लियर? 24,000. Now the next thing, expenses debited to the profit and loss account includes a sum of 14,000 paid for a personal expenses, यानी कंपनी ने ए का पर्सनल एक्सपेंस पेड किया, ठीक है। सो इसका मतलब है एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। सो इस एंट्री में आपके पास आपकी एसेट्स आज न कल बढ़ेगी, और दूसरी चीज ये है कि कंपनी की लायबिलिटी कम होगी, यानी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000 पेड फॉर एज पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी आज न कल ए से पैसा मिलेगा कंपनी को, तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का खर्चा कौन पेड कर रहा है? कंपनी पेड कर रही है, ठीक। तो आज न कल ए पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे? टोटल एंट्री है 14,000, तो 14,000 आप यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा, 14,000 आप यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। हमने जनरल एंट्री बना के बता दिया। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड्स 40,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। स्टॉक क्या है? रिड्यूस हो गया, कितने से रिड्यूस हो गया? 40,000 से, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिक्स एसेट्स आर रीवैल्यूड। हमारी फिक्स एसेट्स कितने की थी? 20 लाख की, और हो कितनी गई? 18 लाख, यानी घट गई फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, ठीक है, कितने से घट गई? यानी 18 लाख की थी, ठीक है, और हमारे पास फिक्स एसेट्स थी 20 लाख, 2 लाख से घट गई, ठीक। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सो सीधा सीधा लॉस ही होगा, चूंकि ये ज्यादा है और ये कम। सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, कितना लॉस ट्रांसफर्ड होगा ये बता। 70,000, ठीक है, फिर 24, 40,000 प्लस 2 लाख माइनस 14,000, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 3,20,000 रुपीज। और इसको रेशियो में आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, यानी 2/5 एंड 3/5, 1,28,000, 3,20,000 इंटू 3/5,
1,92,000। ठीक है, चेक कर लेंगे तो बराबर आ रहा है कि नहीं। यस, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, सो ये आपका एक क्वेश्चन था। अगर आप जनरल एंट्री पूछेगा तो कैसे बनाओगे? रिवैल्यूएशन डेबिट टू WCR, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। इसकी क्या एंट्री बनाओगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लॉस की एंट्री आप लोग जरूर बनाइएगा क्योंकि बहुत सारे लोग एंट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एंट्री बनाइएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री की बात। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। हाउ टू क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पार्टनर्स कैपिटल हम बनाओगे। कौन कौन से पार्टनर हैं? A, B एंड C। A, B, C, A, B, C, A, B, C, पर्टिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इस पैसे की बात कर रहे हैं हम 14,000। ये पैसा 14,000 जो कंपनी ने अपने पास से पेमेंट किया है, आज ना कल पार्टनर्स कैपिटल से ए से पैसा ले लिया जाएगा क्योंकि ये ए का एक्सपेंस है जो कि कंपनी ने पेमेंट किया। जब इनकी इनकम हम काउंट करेंगे तो उसमें से 14,000 रुपीज डेबिट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, सो हमने एंट्री जो पास किया था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, 14,000 याद रखिएगा, एज कैपिटल डेबिट होगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहली चीज हम पुरानी कैपिटल पोस्ट करते हैं और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड कैपिटल है ये आपकी। ठीक है, सो ओल्ड कैपिटल कितनी है हमारी? 15 लाख और 20 लाख। ठीक, दूसरी चीज क्या देखेंगे इसमें कि ए क्या क्या ला रहा है, क्या वो गुडविल का पैसा लाया कि नहीं लाया। इस क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख एंड सी वाज ड्रेन ऑफ गुडविल इन कैश। 4 लाख रुपए की कैपिटल है। ए का हिस्सा, जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है इस के अकॉर्डिंग? 3:3:4, A, B, C, यानी 3×6 और 3/10, 3/10, 4, यानी C का जो हिस्सा है वो 4/10। और गुडविल का पैसा लाएगा कितना? 4 लाख फर्म की गुडविल है इंटू 4/10, कितना लाएगा वो? 1,60,000। और वो ये तो गुडविल का पैसा ला रहा है। दूसरी चीज कैपिटल ला रहा है, शुरू में क्वेश्चन में दिया है 20 लाख कैपिटल के लिए ला रहा है। ये गुडविल है, ठीक है, और ये कैपिटल है, कितना है? 20 लाख। तो टोटल वो लाया कितना? 21,60,000। आप एंट्री साइड में पास करिएगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू C's capital and to premium for goodwill। अब आप एंट्री क्या पास करोगे? यहां लिखोगे being goodwill and capital brought by new partner। ठीक है, नेक्स्ट कैसे काउंट करोगे? 1,60,000 गुडविल का था, कैपिटल का था 20 लाख, टोटल कितना हुआ? 21,60,000। ठीक है, सो 21,60,000 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, गुडविल के पैसे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो इतना आ रहा था। सेकेंड एंट्री बनाइएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 20 लाख है हमारा, सॉरी गुडविल का पैसा आया था 1,60,000, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। तो 20 लाख की हमारी कैपिटल थी और गुडविल थी 1,60,000। 1,60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग आपका आ जाएगा 1,60,000 इंटू 1/4, 40,000 एंड 1,20,000 रुपीज। ठीक है, ये है आपका पूरा क्वेश्चन। अब इसके बाद की जो बात है, जहाँ जहाँ सी क्रेडिट हो रहा है वो आप
सी की इनकम है, और जहाँ जहाँ ए बी सी में से जो डेबिट हो रहा है वो एक्सपेंस है। सबसे पहले चेक करते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000। तो ए जो है, ए का संबंध पार्टनर्स कैपिटल से है, तो ए डेबिट हो रहा है। जहां पार्टनर डेबिट होगा तो इसका मतलब है पैसा लिया जा रहा है उससे, और जहां पार्टनर क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है पैसा फर्म उसको दे रही है, जो उसकी इनकम है। ये एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट होता तो ये इनकम होती। तो एक्सपेंस साइड में जाएंगे और यहाँ सबसे पहले एक एंट्री पोस्ट करिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा? 14,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखो सी क्रेडिट हो रहा है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है, और बाई लिखिएगा बैंक अकाउंट। ये कैपिटल का पैसा है जो कि आ रहा है, गुडविल का भी पैसा कैश में आया। तो सी ला रहा है 20 लाख। यहाँ पे आइएगा, लिखिएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक। ठीक है, सो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं। देखिए 40,000, 1,20,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज और है जो लॉस की है, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, जो आप लोग 1,28,000, 1,92,000। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कुछ भी है इसमें? शायद मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं। तो आप एक काम करिएगा, टोटल करिएगा क्रेडिट वाले को, और क्रेडिट वाला हमेशा आपको ज़्यादा ही दिखेगा। तो 15,40,000 माइनस 14,000 एंड माइनस 1,28,000। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? यानी अभी भी आपका 15 लाख प्लस 40,000, ठीक है, एंड और भी कुछ कहीं कोई एक्सपेंस नहीं। एक चीज़ हमने इसमें कोई फिगर ऐसी है जो डिस्ट्रीब्यूट वाली है। रिजर्व हम बताए थे ना, अगर रिजर्व के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जनरल रिजर्व का जो एंट्री करेंगे हम लोग जनरल रिजर्व की, वो ये करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व खत्म करना है हमको। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए एंड टू बीज कैपिटल। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का, चूंकि ये ए ओल्ड बैलेंस शीट है तो ए और बी की होगी। तो जनरल रिजर्व 3 लाख का था, 3 लाख इंटू 2/5 हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटिएगा। 1,20,000 रुपीज एंड 1,80,000 रुपीज। ठीक है, सो आपकी 1,20,000 प्लस 1,80,000, 3 लाख। ठीक है, सो अब आ जाओ जनरल रिजर्व की बात करते हैं, जो कि फिर देखो पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं जनरल रिजर्व में, तो ये रिजर्व ऑलरेडी बढ़ जाता है 1,80,000, 1,20,000। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब आप एंट्री करिएगा 15 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,80,000 माइनस 14,000 माइनस 1,28,000। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1 लाख, अभी भी 15 लाख की आपकी कैपिटल लगी थी, प्लस 40,000 प्लस 1,80,000। ठीक है, माइनस 14,000 माइनस इसमें और भी कोई चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हो। 3 लाख चेक करेंगे, 3 लाख इंटू 2/5, 1,20,000, 1 लाख। सो थोड़ा सा ये चेंज करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, यहाँ 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब शायद आंसर आ जाए आपका 15,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 14,000 माइनस 1,28,000। तो आपका जो आंसर आएगा टू बैलेंस, यही आपकी न्यू कैपिटल होगी। ठीक है, जो न्यू बैलेंस शीट में जाएगी ए और बी के और सी के, 15,18,000, 15,18,000, फिर 20 लाख, फिर 1,20,000, फिर 1,80,000 माइनस 1,92,000। ठीक है, सो 20 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,92,000। सो आपका जो कैपिटल की फिगर आएगी बी की 210,800। ठीक है, और सी का तो 20 लाख आएगा ही आएगा,
इसमें से ये ज़्यादा होगा हमेशा क्रेडिट वाला, और इसमें से इनके एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल कैपिटल होगी वो यही होगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। कैसे बैलेंस शीट बनेगी? ठीक है, जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं उनको दोबारा हम बैलेंस शीट में नहीं बनाते, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, और हमेशा ये ओपनिंग ही बैलेंस शीट होती है। ठीक है, तो सारे फिगर्स हमको ट्रांसफर करने रहते हैं, इसलिए हम ओपनिंग में बनाते हैं इसको। ठीक है, सो रुपीज़ एसेट्स रुपीज़, हमेशा हम जो नई बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे ABC की, ये ABC की है ये बैलेंस शीट, और 114 चूँकि जो बैलेंस शीट क्लोज हुई थी इनकी वो कब हुई थी पहले चेक कर लेंगे हम। ठीक है, सो इसमें कहीं भी डेट मेंशन नहीं किया है इस क्वेश्चन में, ना ईयर मेंशन है, मेंशनड है 1/4/2020। ठीक है, यानी ये जो बैलेंस शीट होगी वो 31/3/2020 की होगी, जब ए और बी पार्टनर। अब ABC तीनों पार्टनर है। ठीक है, अब हमें चेंजेस क्या है? सबसे पहली चीज WCR, जो कि पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था, तो आप स्टैंड करोगे इसको WCR, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी बड़ी थी तो नई बैलेंस शीट में स्टैंड रहेगी। ठीक है, बात करते हैं हम डेटर्स की, कितने के हमारे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। ठीक, फिक्स एसेट्स 20 लाख की थी, जिसमें से फिक्स एसेट्स घट गई थी, तो नई फिक्स एसेट्स कितनी हुई? 18 लाख। कंप्लीट। स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक 15 लाख का था, स्टॉक घटा था 40,000 से, तो कितना हो गया? 14,60,000। ठीक है, 15 लाख माइनस 40,000। नेक्स्ट ऑफ हमने ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स थे 5 लाख के, जिसमें से बैड डेट्स था, जिसमें से न्यू प्रोविजन था। ठीक है, न्यू प्रोविजन, तो हमारा बैड डेट्स था 20,000 का, जिसमें से न्यू प्रोविजन था 24,000। तो हमारा जो 5 लाख माइनस जो कि डूबा हुआ पैसा था 20,000 माइनस 24,000, 45,60,000 रुपीज। ठीक, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, हो गया ठीक, 1 2 3 4 5। नाउ नेक्स्ट सारी चीजें हमने डेबिट साइड किया। अब ए का कैपिटल अकाउंट जो कि लायबिलिटी एसेट्स हमारी बड़ी थी, तो हमने ए के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे हमने दिखा दिया, यानी ये ए का पर्सनल खर्चा था, तो ये कैपिटल अकाउंट से जाएगा, ना कि बैलेंस शीट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स ना घटे थे ना बढ़े थे, तो जैसा है वैसे स्टैंड कर दीजिएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, आप यहाँ देख लीजिए, जनरल रिजर्व को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दोबारा आपको न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। कैपिटल ऑफ ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, और यही जो कैपिटल है यही आपकी फाइनल कैपिटल है। 15,18,000, 2,108,000, 20 लाख। 15,18,000 प्लस 2,108,000 प्लस 20 लाख रुपीज, तो आपका आ जाएगा 56,26,000। अब कुछ ऐसा नहीं है, जो अब बचा है आपका बैंक यानी कैश, और यहाँ आप चाहे बैंक लिखिए चाहे कैश लिखिए, कैश मिलाया तो कैश भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सो कैश ही समझिएगा। नेक्स्ट, हमारा ओल्ड कैश था 2 लाख रुपया। कैसे बहुत सारे लोग कैश को नहीं मिला पाते हैं, तो हम कैश को मिला रहे हैं। प्लस हमारे पास कैश में क्या क्या आया था? कैपिटल आई थी, गुडविल आई थी, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 21,60,000। ठीक है, सो आपका नया जो कैश हो जाएगा वो कितना होगा? पुराना कैश और नया कैश 23,60,000 रुपीज, 23,60,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिला तो पूरा सवाल गलत है। ठीक, सो आपका आंसर आ रहा है बैलेंस शीट का 16,76,000 लायबिलिटी साइड। ठीक, 18 लाख एसेट्स में 14,60,000 प्लस 60,000। ठीक है, फिक्स एसेट्स थी हमारी 18 लाख की, प्लस स्टॉक था हमारा 14,60,000 का,
और डेटर्स थे हमारे 4,56,000 थे। 4,56,000 प्लस कैश, नया कैश है हमारा ये, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई 70। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, चूँकि 4,56,000 है। अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सीधा कॉल करिएगा 7355297074 पे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत कॉल करिएगा, कहीं भी कोई भी एंट्री पूछनी हो, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 51।